Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. The final few days are left for Prelims 2026, and I'm sure that all of us are facing a little bit of anxiety, a little bit of fear, and that is normal. सबके साथ होता है, मुझे भी बहुत डर लगता था अपने अटेम्प्ट देने के टाइम. But the point is, we still need to use these days productively. These days also matter, and what you study right now will have the maximum impact in your score. तो इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? Let's talk about that. Firstly, please ensure that we have the right mindset at this stage. हमने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी प्रीलिम्स की, हमने यही सोचा था कि यार लास्ट फ्यू डेज में ना क्राइसिस सिचुएशन में नहीं आना है हमें. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू इंश्योर नाउ. Any crisis at this stage, any problem at this stage, any anxiety at this stage has the ability to spoil our attempt. And if we do that, that will lead to a disastrous outcome. That is what we have to avoid. We'll keep a clear strategy and we'll have clear goals and clear targets at this point. Firstly, no new sources. चाहे कुछ रह गया हो, कुछ बैकलॉग हो, कोई मेजर चीज रह गई हो, प्लीज डू नॉट रीड एनीथिंग न्यू. कुछ भी नया इस पॉइंट पे पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है. चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट लग रहा हो आपको, हो सकता है उससे एक क्वेश्चन आना भी हो, स्टिल आई विल रिकमेंड कि उस चीज को अब छोड़ दें. ऑल यू हैव टू डू नाउ इज रिवाइज रिपीटेडली एंड कंसोलिडेट योर नॉलेज. प्लीज डू नॉट रीड एनीथिंग न्यू. चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी नई वीडियो आ जाए, कुछ भी हो. That is why I have not been making any marathons or videos at this point, simply because I feel that in the month of May, this time should be yours to target your weak areas and to revise. Similarly, you should not do anything new in terms of mocks now. मेरा आइडिया ये है कि 3rd मई के बाद आपको मॉक्स नहीं देने थे. आई हैव सेड दिस बिफोर, बट फिर भी अगर आपने बिल्कुल कोई मॉक टेस्ट नहीं दिए तो एटलीस्ट 15th मई के बाद कोई मॉक टेस्ट मत देना. अब अगर मॉक टेस्ट नहीं देने तो क्या करना है? तो समझते हैं मैं मॉक टेस्ट देने के लिए मना क्यों कर रहा हूँ. मॉक टेस्ट देने के लिए मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि हम इस टाइम पे बहुत इजीली फ्लस्टर हो सकते हैं, हम बहुत इजीली स्कैर्ड हो सकते हैं. We might come across a mock test where we score very low and then we start questioning our whole preparation, right? And हो सकता है वो mock test अच्छा बना भी ना हो. तो इस टाइम पे कोई भी नया mock test देने की जरूरत absolutely नहीं है, right? Why? Because the mindset of the examiner of UPSC versus the mindset that we all of us in the coaching industry have, there is a clear difference. तो मैं आपको कहूंगा यहाँ पर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करें. I promised I will do 2 papers with you and we will do them over the next few weekends. मैं 2 पेपर 2024 और 25 का आपको लाइव सॉल्व करके दिखाऊंगा and we'll sit together and I'll tell you how I would have approached the paper. और इस टाइम पे आपको सिर्फ यूपीएससी के ही क्वेश्चंस देखने चाहिए and try to analyze the patterns that you see in these questions. Next, प्लीज अपना डे पहले से प्लान करिए. You should not have any random day at this point. कई लोग मुझे कहते हैं कि सर आप अब टारगेट्स दे दो. I don't think it is the right thing to give you targets at this point. This is the time when you put your own schedule and you have your own targets and you don't copy or don't stick to any one approach. Why? Because you will have certain weak areas. हमने सब कुछ पहले एक बार कंप्लीट किया स्टेप में, फिर हमने एक बार रिवाइज भी कर लिया है. At this point, you know what are your weak areas and you know what are your strong areas. मैं एक चीज आपको जरूर यहाँ पर बताऊंगा, जो चीज मैंने कई बार बोली है, but I would like to reiterate it. देखिए हमारा गोल है that we have 100 marks, right? Looking at the paper of the last 5 years, 4 subjects: polity, economy, geography and modern history. These 4 subjects are going to have approximately 50 questions. In 50 questions में से we have to get 35 questions, around 70 marks. नेट करेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं. ये वही 35 है जो सब कहते हैं 30 to 35 सॉल्वेबल होते हैं, ये वही 35 क्वेश्चंस हैं, इनको हमें गलत नहीं करना है. तो दिस ऑफ कोर्स बिकम्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी. गैप लग रहा है यहाँ पर, कहीं इशू लग रहा है, दिस शुड बी प्रायोरिटी नंबर 1. Then there are 5 other subjects: mapping, art and culture, IR, science and tech and environment. When we come to these also will have 50 questions, but here we are going to target approximately 20 and get 40 marks from here. ये क्वेश्चंस रैंडम होते हैं, कई करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, करंट अफेयर्स से इंस्पायर्ड होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते होते. तो इन पे हमें सेकंड प्रायोरिटी रखनी है, बट वी डोंट हैव टू इग्नोर देम. सो दीज कॉन्सेप्ट्स यू कांट मिस आउट ऑन. दिस is priority number 2, and this is, I'm broadly talking of static things here. This is the idea that you need to keep. अब बात एक दो चीजों की और कर लेते हैं.
अफेयर्स एट दिस पॉइंट आई वुड से वेरी लो प्रायोरिटी फॉर यू, अनलेस कोई मेजर करंट अफेयर्स जो आपने मिस किए हों, लो प्रायोरिटी रखो. स्टैटिक एज द फर्स्ट प्रायोरिटी, पीवाईक्यूज एज द सेकंड प्रायोरिटी, करंट अफेयर्स एज द लोएस्ट प्रायोरिटी आई वुड कीप एट दिस पॉइंट. एंड इस चीज को हमेशा दिमाग में याद रखना, एंड आपका कॉन्फिडेंस भी इसी ऑर्डर में होना चाहिए, राइट. तो अब अभी अगर आपको लग रहा है कि यार मैं पॉलिटी में भी वीक हूँ और साइंस एंड टेक में भी वीक हूँ, लेकिन मेरे पास एक ही दिन है, spend that day on polity. And I'm saying this being a science and tech teacher myself, I would obviously want कि आप लोग बहुत अच्छा perform करो science and tech में, but still polity will have much more weightage, economy will have much more weightage than these subjects, so keep them as the first priority at this point. And अब खुद analyze करो, आपने अगर 2 बार preparation कर ली है, 2 cycles कर लिए हैं preparation के, I'm sure you also know कि यार ये मेरे weak areas हैं और ये मेरे strong areas हैं. Sit down with yourself, write your weaknesses and your strengths on paper and analyze them properly and make your plan accordingly. This is probably the most important thing that I'm going to tell you today. Please train for the exam day. Say we are unfortunately in a very hot year, right? It is a super El Nino year. So we have to develop some heat tolerance. Temperatures will be high on that day, both in our brains and outside. तो हीट टॉलरेंस हमें डेवलप करनी है. एंड सेकेंडली एग्जाम का टाइम 9:30 AM है, 9 और 9:30 इट विल बी शोन ऑन द एडमिट कार्ड्स. तो इस टाइम पे आपको अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स कर लेना है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट योर ब्रेन मस्ट बी एक्टिव इन द टाइम व्हेन द पेपर हैज टू हैपन. तो अगर ये टाइमिंग होती है पेपर की कि 9:30 to 11:30 जीएस का पेपर होता है और 2:30 to 4:30 सीसैट का पेपर होता है, तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इस टाइम पे यू मस्ट रीड एवरी डे इन योर होम. इस टाइम पे आपको पढ़ाई जरूर करनी है और इसी टाइम के हिसाब से आपको अपना स्लीप साइकिल प्रैक्टिस करना है. गेट योर ब्रेन अक्लेमेटाइज टू दिस टाइम. आप जब उस दिन प्रीलिम्स वाले दिन उठोगे और आप जाओगे, आप इमेजिन करो कि आप क्या शेड्यूल फॉलो करोगे. मे बी ऑन द प्रीलिम्स डे यू विल वेक अप एट 7, then by 8:30 you would want to reach the exam center, right? You will have a decent breakfast. उस दिन थोड़ी टेंशन भी होगी, तो 7-7:30 तक आप उठोगे, तैयार होगे और 8:30 तक आप सेंटर तक पहुंच जाओगे. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू. तो हैव द सेम शेड्यूल. 7 बजे उठो. 7 बजे उठना है तो कितने बजे सोना होगा? 11 बजे सोना होगा, टू गेट 8 hours of sleep. And this time you should not compromise your sleep at all. तो then start sleeping from 11 to 7. 2-3 दिन लगेंगे उस स्लीप शेड्यूल को फॉलो करने में, बट नाउ इज द टाइम टू फिक्स इट. अगर आपको आदत होगी रोज 11 बजे सो के 7 बजे उठने की, तो उस दिन भी 11 बजे नींद आ जाएगी और आप 7 बजे उठ जाओगे. And by 8:30 you will be at the exam center. So by 8:30 you should start studying, right? You should be in the mindset of studying in the morning. Then जब आप पेपर दोगे जीएस का, उसके बाद बीच के 3 घंटे होंगे. In these 3 hours what would you want to do ideally? You would want to say कि ठीक है यार, I would want to take a light lunch, right? मैं कुछ light lunch खाऊंगा इस टाइम पे. तो if you want to have a light lunch at this time, have a light lunch even in these days, right? And 4:30 के बाद आप अपना proper lunch करोगे. So have this schedule even now. उस दिन कोई random नई चीज नहीं होगी, it will be just another day. तो उसकी प्रैक्टिस अभी करनी है हमें. Then अपनी स्ट्रैटेजी अभी से फाइनलाइज कर लो in terms of your plan for CSAT, your attempts count and your paper approach. आपने काफी सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, राइट? उन मॉक टेस्ट में आपने फिगर आउट किया होगा कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, मेरा वीक सब्जेक्ट कौन सा है. ऑलवेज स्टार्ट द पेपर विद योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट. आपने मॉक टेस्ट में देखे खुद के लिए फिगर आउट किया होगा कि यार मैं 50-50 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ, इनको मैं अटेम्प्ट करता हूँ या नहीं. जो 1/3 एलिमिनेट कर लेता हूँ, क्या इनको मैं अटेम्प्ट करता हूँ या नहीं. इफ यू आस्क मी, 50-50 आपको हमेशा अटेम्प्ट करना चाहिए. दिस डिपेंड्स ऑन वेयर योर सिचुएशन इज. बट आपने खुद के लिए कुछ डिसाइड किया होगा. यू मस्ट हैव फिगर्ड आउट कि दिस वर्क्स फॉर मी एंड दिस डजंट. और नहीं भी किया है तो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कर लो, बट दिस शुड नॉट बी लेफ्ट फॉर द लास्ट 2-3 डेज. ये अभी से डिसाइड कर लेना है कि यार पेपर के दिन पे मैं कैसे इसको अप्रोच करने वाला हूँ. सेम थिंग फॉर सीसैट. सीसैट के जितने भी आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, व्हाट वुड यू हैव एनालाइज्ड? यू वुड हैव सेड कि यार ठीक है, आई नो आई एम गुड एट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आई एम नॉट दैट गुड एट मैथ्स. आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ हियर. तो मुझे था कि यार आरसी तो मुझे सारे करने हैं, मैथ्स में मुझे इजी क्वेश्चंस ढूंढने हैं. तो सिट डाउन एंड एनालाइज कि यार ये चीजें हैं एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू फॉलो. You should have that clear idea in your head. Lastly, protect your health. Sleep helps consolidate memory. बार बार बोलो ये बात मेरे साथ. Sleep helps consolidate memory. Sleep helps consolidate memory. If sleep helps consolidate memory, you cannot compromise on your sleep. Please sleep for 8 hours daily. ठीक है?
जो हमारे ब्रेन में साइनेप्सेस बनते हैं ड्यूरिंग स्लीप, उसी से मेमोरी कंसोलिडेट होती है. तो प्लीज इंश्योर दैट यू आर स्लीपिंग ऑन टाइम एंड स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स. अगर नींद नहीं भी आ रही है रात को, आप प्लीज इंस्टाग्राम स्क्रॉल मत करिए, सोशल मीडिया मत देखिए, यूट्यूब मत देखिए. एट दैट पॉइंट keep your eyes shut. 11 to 7 is your sleep time and it has to be like that till 24th May. Secondly, I would ask you to eat healthy food. Why am I asking you to do that? अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा, दिल्ली गुड़गांव एनसीआर में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस फैली हैं. पीपल आर गेटिंग अ लॉट ऑफ स्टमक अपसेट केसेस. वन ऑफ देम इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू. तो ये चीज़ हो जाती है, राइट? एंड दैट हैपन्स जनरली व्हेन वी ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड. एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 15-20 डेज ये काम मत करिए. देखो यार, एक लाइफ ऑल्टरिंग मेजर इवेंट होना है, राइट? द प्रीलिम्स इज गोइंग टू बी अ लाइफ ऑल्टरिंग मेजर इवेंट. ठीक है, काफ़ी लेम होगा हमारा प्रीलिम्स. तो हमें थोड़ी सी लेम लाइफ जीनी पड़ेगी तब तक, इन द सेंस दैट वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी. वेक अप ऑन टाइम, स्लीप ऑन टाइम, घर का खाना. अगर आप किसी पीजी, हॉस्टल या बाहर रूम में रहते हैं, तो जो भी आपका खाना बनाता है, पे देम अ लिटिल एक्स्ट्रा एट दिस पॉइंट एंड टेल देम दैट प्लीज गिव मी क्लीन फूड. मुझे कुछ बाहर का नहीं चाहिए, बट प्लीज इंश्योर मुझे क्लीन फूड मिल जाए. क्यों? क्योंकि मेरा पेपर है. उन्हें ये बात बता दो, right? And everybody will understand this. I think this is one of the best things about our country, that people are very compassionate here. तो वो सब समझेंगे ये बात, right? तो प्लीज इस चीज पे फोकस करना एंड इंश्योर दैट यू ईट हेल्दी फूड. इस टाइम पे एक बीमारी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. अब व्हाट नॉट टू डू. पहली बात, अगर आपको लग रहा है कि आपके कोर एरियाज बहुत वीक हैं, सर मैंने तो अभी तक पॉलिटी पढ़ाई नहीं है, मैंने तो इकोनॉमी स्टार्ट ही नहीं किया है, मैंने तो सीसैट एक भी पेपर अभी तक नहीं किया है, यू कैन स्टिल रिकंसिडर दिस अटेम्प्ट. अगर आप पेपर देने नहीं जाओगे तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा. देर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन यू टू गो एंड गिव द पेपर एंड वेस्ट एन अटेम्प्ट. एन अटेम्प्ट इज लाइक एन एसेट एंड यू शुड नॉट डू अवे विद इट. आप दोबारा इस बारे में सोच सकते हैं कि आपको ये पेपर देना है या नहीं. एंड इफ यू वांट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो. आई डोंट वांट टू इन्वोक एनी फियर. आई नो अगर आपने सोच रखा है तो आपको पेपर जरूर देना चाहिए. बट अगर आप बिल्कुल ही सिर्फ इसलिए पेपर देने जा रहे हो कि यार मैंने तो इतने टाइम से पेरेंट्स को बोल रखा है, या मैं 2 साल से प्रेप कर रही हूँ और मैंने पेपर पेरेंट्स को बोल रखा है तो मुझे तो देने जाना ही है, प्लीज़ डोंट डू दैट. ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है पेपर देना. सो यू कैन थिंक अबाउट इट, यू कैन टेक योर टाइम. एंड ज़रूरी नहीं है यार, अगर अटेम्प्ट वेस्ट होता है तो बाद में हमें बहुत रिग्रेट होता है, बिकॉज फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में ही जनरली ये केसेस होते हैं. एंड फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में ना हम पे प्रेशर कम होता है. as the attempts pile on, the pressure also starts increasing, right? So don't waste those golden attempts. So अगर आपको लग रहा है कि मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, या फॉर एनी रीजन नहीं हो पाई, कोचिंग में नहीं हुई, या मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, या कोई हेल्थ इशू हो गया था, यू कैन चूज टू इग्नोर दिस अटेम्प्ट ऑल्सो. देन फियर नॉर्मल है यार इस टाइम पे, मैनेजमेंट इज रेयर. देखो यार, डर सबको लगता है, ठीक है? एंड अगर डर ना लगे तो वो प्रॉब्लम है, बट वी हैव टू फेस इट. अल्टीमेटली हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम ये सब कर रहे हैं ताकि हम यूपीएससी क्लियर करके एक ब्यूरोक्रेट बने, सिविल सर्वेंट बने. वहाँ पर भी हमें ये टफ लाइफ सिचुएशंस हैंडल करनी होंगी, वहाँ पर भी हमें ये टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे. तब भी ऐसा डर लगेगा, तब भी ऐसी एंग्जाइटी होगी. एवरी डे वी हियर स्टोरीज ऑफ सिविल सर्वेंट्स हु हैव टेकन सच ब्रेव डिसीजंस in the face of fear or even sometimes political pressure. But that is what we are being trained for, and that is what we are aiming for. तो वो चीज़ आज है, और आज जो फेयर है वो बहुत कम है. इट इज़ जस्ट एन एग्जाम, और आपने इसके लिए तैयारी करी है, मे बी 1 साल तक करी है, बट आपने इसके लिए तैयारी करी है. इस टाइम पे उसको जाने मत दो. धीरे धीरे जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट बॉल. मैं तो एम एस धोनी की इस लाइन का बहुत बड़ा फैन हूँ. हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम आगे सोचते हैं कि यार अगला क्या करना है, और मैं ये करूँगा फिर क्या होगा, मैं ये करूँगा फिर क्या होगा. मत सोचो, जस्ट द नेक्स्ट बॉल. अपना एक प्लान बनाओ कि यार अब मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 18-19 डेज पड़े हैं, ये सब्जेक्ट्स मुझे रिवाइज करने हैं, कल मुझे ये रिवाइज करना है, और कल जो मुझे रिवाइज करना है आपको बस उतना, उसके बाद और कुछ नहीं. जब कल का डिसाइड कर लिया, व्हेन यू वेक अप द नेक्स्ट डे, जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट आवर. अगर आप ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स सोचोगे कि मैंने तो तब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मेरा प्रीलिम्स होगा तो मैं ऐसे करूंगा, नहीं होगा तो मैं ऐसे करूंगा, तो फियर आएगा, तो एंग्जाइटी आएगी, ओवर थिंकिंग होगी. जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट 1 आवर कि अगले 1 घंटे में मेरा क्या काम है, अगले 1 घंटे का काम मैंने किया, एंड देन यू मूव ऑन. एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू एट दिस पॉइंट. मत सोचो ग्रैंड विजन, मत सोचो बड़ी चीजें, मत सोचो पेपर कैसा होगा, मत सोचो कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस तो नहीं हो जाएगा, कट ऑफ कितना होगा. कुछ मत सोचो इस बारे में.
जस्ट द नेक्स्ट डे कि यार अगले दिन में मुझे क्या करना है और उसके अगले घंटे में मुझे क्या करना है. अगर कल मुझे साइंस एंड टेक रिवाइज करना है और नेक्स्ट 1 आवर में मुझे बायोटेक रिवाइज करना है, जस्ट डू दैट. उसके अलावा कुछ नहीं. दैट्स ऑल यू नीड टू डू. अदर देन दैट नथिंग एल्स. अगर आप कोई भी फियर या कुछ फेस कर रहे हो, प्लीज राइट इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू एज मेनी एज आई कैन. बिकॉज इस टाइम पे यू माइट बी फीलिंग अलोन एंड यू माइट बी फीलिंग एंशियस, बट प्लीज नो दैट आई एम विद यू. एंड आपने मेहनत करी है यार. एंड ये एक लाइफ लॉन्ग चीज मैंने देखी है, दैट एफर्ट रेयरली गोज अनरिवॉर्डेड. अगर आपने एफर्ट किया है आपको उसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा. इफ यू वर्कड हार्ड यू विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट्स ऑफ इट. तो उस चीज को और अपने उस बिलीफ को हम स्टेबल रखते हैं. जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट आवर. अपना टारगेट लिखो अगले दिन का और उसको एग्जीक्यूट करो. ज्यादा लंबी चीजें सोचने की जरूरत नहीं है. राइट. ट्रस्ट द प्रोसेस. You have worked hard. Trust on yourself. You have done what had to be done. And in the next few days, also, I'm sure that if you have this self belief, you will work as hard as possible. In the end, my best wishes to you, and I'm sure you'll do great. Take care. There might be fear, there might be anxiety, but as I've said before, I'll say it again. Thinking about fear rarely helps us overcome it. The only thing that helps us overcome it is action. So act, don't think. Thank you.